So in last lecture we have seen various object oriented programming concepts, right? And now today we are going to see memory management in Python. Okay, so in memory management basically we are going to see these three topics: memory management and introduction to garbage collection, then object creation and destruction, and then object properties. Okay, so object properties we have already seen, so we'll just go through these first 2 points: memory management, garbage collection, object creation and destruction. Okay, so before that you should know what is object. So in previous lecture only we have seen many practice assignment on classes and objects, so I hope you already know what object is. Okay, so if there is a class, you can create its object, okay, by passing some values which are present in the class as a properties, and you can call methods of the class, right? So when you have object, when you actually create object of the class, memory is being allocated. Okay, when you just create a class, no memory is allocated, but when you actually create object of that class, the memory is allocated. Okay, and the memory which is getting allocated when you create object, we have various memory management techniques present in any language, okay, for object creation, destruction, or garbage collection. Okay, so that concepts we are going to see today. Just wait a minute. Okay, so we already know how to create object, right? So objects are instances of class. To create object, first we need to define the class, and to create object we instantiate the class. That is, in every class we have seen that there is a init method that is called as initializer, and when you create object, that method is automatically called, and whatever properties are there inside the class we are passing in that init method, those will be initialized. Okay, so when an object is created, Python allocates memory for that object from heap. Okay, so from where memory is getting allocated? From heap. So basically in our memory there are various parts like stack memory, heap memory, right? So for objects, memory is dynamically allocated, and when dynamic allocation of memory is there, that memory is allocated from heap. Okay, this is about object creation. Now in Python we have various methods for object destruction. Okay, so first method is reference counting. So Python uses reference counting to manage memory. Each object maintain a count of references pointing to it. Okay, and when the reference count drops to 0, object memory is deallocated. ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करते हो, हर एक ऑब्जेक्ट एक काउंट मेंटेन करता है. उस काउंट, that count is called as reference count. Okay, that reference count is nothing but count of references pointing to that object. Okay, and when that reference count is 0, the memory for that object will be deallocated. Let's say here in this example you can understand, we are using that reference count. Okay, so we have a class, name of the class is my class. Inside that class we have an initializer method, that is init self value. Okay, very simple class. Here we are just assigning that we have only one property, that is value. Okay, nothing else. Now we are creating object of that class, obj is equal to my class, and we are passing the value. Okay, so as soon as you create the object,
memory will be allocated, right? This obj memory for obj will be allocated. Then we are printing value of obj. Now again we are creating one more object of same class. Name of object is a. Okay, and when you print get, there is a function called get ref count, okay, which is in sys module. So for using this you have to first import sys module. So here you can see we have imported the sys module. So how to do it? Sys dot get ref count a. Okay, it will count number of references that are pointing to this object. It will give you output as 2. Even if you see there is only one object we have created, but still it will give you 2 because that a is used one for creating the object, and second time we are using that a in get ref count, right? So it will give you output 2. So two objects are currently referring to a. That is the meaning. Okay, and when you say del a, that means delete the object a, and after that if you see this get ref count, you may not get that ref count because a is already deleted. But when we say delete any object, that reference count drops to 0 and the object is destroyed. Got it? समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now next another method for object destruction is called as garbage collection. Okay, so this garbage collection is a very important concept in memory management. Okay, in Python there is a automatic memory management. So that automatic memory management will always take care of the memory allocated for the object. Okay, so as that object is not in use, this automatic garbage collector will automatically free memory allocated to that object. Okay, so this automatic memory management is a feature that reclaims memory allocated to objects that are no longer in use by the program. So अगर आपके प्रोग्राम में ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स है कि जो अभी यूज नहीं हो रहे, जिनका अभी इसके आगे कुछ भी यूज नहीं है एग्जीक्यूशन में, तो ये जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली मेमोरी उस ऑब्जेक्ट के लिए डिलीट कर देता है. ठीक है, मेमोरी फ्री कर देता है. ठीक है, so this garbage collector is, you can say, a system, or it is a technique which is continuously running behind your program, राइट. जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चल रहा होता है तो गार्बेज कलेक्शन भी एट दैट टाइम एक्टिव होता है, एंड कंटिन्यूसली it is finding for the objects which are not in use. Okay, and as soon as it get those objects, it will immediately deallocate memory for those objects. Okay, so this garbage collection prevent memory leaks and ensures efficient use of available memory. And um, that method we have seen, reference counting, it is simple one, it is also efficient one, but reference count will not handle cyclic references. Cyclic references here means if there are two objects, object 1 and object 2, so if object 1 is referring to object 2 and object 2 is again referring to object 1, this is called as cyclic reference, right? So if cyclic reference is there, reference counting will not be able to give you correct reference count, and it will not able to handle those cyclic references. Okay, so in that case, here Python's garbage collection is a very powerful tool which automatically detects cyclic references, and it will
uh, deallocate memory for such cyclic references as well. Okay, because when we have cyclic references, our reference count will not drop to zero, because one object is referring to other, and that other object is again referring to previous one. So reference count will not go to zero, and that will cause in memory leak. So to address this, Python include a cyclic garbage collector. So this cyclic garbage collector will automatically find out the cyclic references, and it will delete those objects. Okay, it will automatically collect those objects. So that garbage collector breaks the cycle, reclaims the memory occupied by this object. Okay, so we have seen two techniques for object destruction. First is reference counting, another one is garbage collection. Okay, now in Python there are few functions which can be helpful for memory management. So these are the three functions here. id, when you create any object in Python, it that object will always have some id. Okay, so if you want to delete that particular object, you can use its id as well. Okay, so that id function will return you memory address of that object. Then there is a get size of function which will give you size of object in bytes, and there is a gc.collect method. So this gc.collect method मैन्युअली ट्रिगर गार्बेज कलेक्शन. ठीक है, तो इसके पहले स्लाइड में हमने देखा कि गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली होता है. पीरियोडिकली गार्बेज कलेक्टर स्कैन करता है ऑब्जेक्ट ग्राफ को और डिटेक्ट करता है अनयूज्ड रेफरेंसेस, वो सारे रेफरेंसेस को डिलीट कर देता है. लेकिन कभी आपको मैन्युअली गार्बेज कलेक्टर को कॉल करना है, तो यू कैन कॉल gc.collect मेथड. इट विल मैन्युअली ट्रिगर गार्बेज कलेक्शन. सो जिस पॉइंट पे आप कॉल करते हो उस पॉइंट पे गार्बेज कलेक्शन कॉल होगा, ट्रिगर होगा, और वो जितनी भी अनयूज्ड मेमोरी है उसको फ्री कर देगा. ठीक है, सो a short program is given here for you by using this function. So if you are creating one simple integer, this is also one type of object of integer, right? You can get its memory address by using id function. So id of a will give you memory address. Then get size of function will give you size of that object in bytes. So let's say we have some list, define a is equal to 1 comma 2 comma 3, and now I want to know size of a. So for that, first you need to import sys module, and from sys module you can use get size of a. This will return you size of the list object. Okay, so according to elements in that list, the size will be given. And then next we have collect method. It is from gc module, that is garbage collector module. So this garbage collection module you have to first import using import statement, and then on that in from that you can use this collect method gc.collect. Okay, so it will call garbage collector and all unused references will be released. ठीक है, any doubt in memory management functions? No, ma'am. Is it clear to all? Yes, ma'am. ओके, तो ये Yes, आपने ma'am. अभी प्रोग्राम्स देखे. ये आप एग्जीक्यूट करके देखो आपके लैपटॉप पे, तो यू विल गेट टू नो. ठीक है, मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं. आई विल शेयर दिस नोट्स विद यू. वहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखो, बहुत सिंपल है. सो आई विल नॉट बी एग्जीक्यूटिंग दिस. ओके, तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड विथ दिस यूनिट. ओके, एंड immediately we are starting with the next one. ठीक है, तो ये जो था यूनिट 3 था, जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे. पहले तो हमने फंक्शन देखा था डिटेल में, उसके बाद हमने सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स देखे, एंड वी हैव सीन प्रैक्टिस सेशन ऑन फंक्शन and practice assignment on object oriented programming as well. Okay, after that today we have seen memory management. Okay, now next we are going to start with exception handling in Python. Just wait for a minute.
Is my screen visible again? Visual man. Okay. So we are going to see now exception handling in Python. So do you know what is exception? Yes, ma'am. जावा में पढ़े थे मैं। हाँ, क्या है Java में exception? थ्रो है, थ्रो है मैम, थ्रो है और अनएक्सपेक्टेड एरर मैम उसको एक्सेप्शन Right, बोलते हैं। right. Unexpected errors in program are called as exception. अनएक्सपेक्टेड एरर मैम अब तो बात। And we can use throw statement, try catch, finally statements in Java to handle exception, if I'm not wrong. Is it right? यस मैम। Yes. So same like that we have exception handling in Python. Okay. Little bit syntax will be different, but the concept, basic concept will be same. Okay. So first we'll see the introduction of exception handling. So exception handling is very critical critical aspect of writing robust and reliable software. Okay, because whenever you develop any software, there should not be any unexpected errors. Okay, so you should expect error, you should anticipate those errors, and you should handle those errors in your program so that whenever some error occur, you are able to give proper messages to the user, right? राइट, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाते हो तो ऑल ऑफ सडन वो बंद नहीं होना चाहिए ड्यू टू सम एरर, ठीक है? इंस्टेड ऑफ दैट आपको पहले ही पता होना चाहिए कि ऐसे एरर आ सकते हैं, तो आप पहले ही वो एरर हैंडल करो और यूजर को प्रॉपरली मैसेज दो कि दिस हैज हैपन एंड बिकॉज ऑफ दैट ये एरर आया है, तो यू प्लीज डू दिस, ठीक है? तो दिस इज द गुड प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, गुड प्रैक्टिस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एंड वो हम कैसे कर सकते हैं? यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग. So exception handling allows programmers to deal with unexpected events or errors that occur during execution of program. So by using exception handling mechanism, you can ensure that your program gracefully handles the error and continues to run smoothly or terminate gracefully when necessary. So when you handle those exception properly or use exception handling mechanisms in your program, you can rest assured that your program will handle the error very smoothly. It will give proper messages to the user, right? क्योंकि जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हो, अगर अनएक्सपेक्टेड कुछ एरर आ जाता है तो ऑल ऑफ सडन वो बंद नहीं हो जाता, राइट? जैसे कि आप अमेजोन पे जा रहे हो, कोई शॉपिंग, यू आर डूइंग सम शॉपिंग, यू आर परचेसिंग सम आइटम्स और अचानक से कुछ एरर आ गया और बंद हो गया, ठीक है? तो सच सिचुएशन नो वन विल लाइक, बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपको प्रॉपरली मैसेज आ रहा है कि अभी सर्वर डाउन है, सो वी कैन नॉट प्रोसेस your request, that will be better. You will get to know that server is down, so you will try after some time. बट ऑल ऑफ सडन अगर एप्लीकेशन बंद हो रहा है, ऑल ऑफ सडन एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है, तो आपको लगेगा कि ये कैसे सॉफ्टवेयर बना है, राइट? सो जस्ट लाइक दैट आप भी कभी कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे तो उसमें अगर प्रॉपरली एरर मैसेजेस दोगे यूजर को, तो ही यूजर आपका प्रोडक्ट प्रेफर करेगा, सॉफ्टवेयर प्रेफर करेगा, राइट? सो दैट from that aspect exception handling is very much important. Okay, now what is exception? So जैसे आपने बताया, exception is an event that disrupts the normal flow of program instruction. So when some error is occurring in your program or some unexpected situation is happening in your program, that is known as exception, unexpected condition. So common examples of exception can be divided by zero, राइट? जैसे आपके प्रोग्राम में कोई डिवीजन आप कर रहे हो और गलती से वहां पे किसी ने जीरो एंटर कर दिया और गलती से जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो जीरो हो गई, सो वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो, एट दैट टाइम you should be able to handle that exception, otherwise your program will go out of execution, it will throw some error and stop working. Then
if you are trying to access some file which is not exist on given location, then also this is also one type of exception, राइट कि कोई फाइल आप आपके प्रोग्राम से ओपन कर रहे हो, कोई इमेज ओपन कर रहे हो और वो इमेज उस लोकेशन पे जो भी पाथ आपने स्पेसिफाई किया है उस पाथ पर्टिकुलर पाथ पे नहीं है, देन ऑल्सो योर प्रोग्राम विल थ्रो एरर, राइट। तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैट एरर अगर आप हैंडल नहीं करते हो तो आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाता है और वो ऑल ऑफ सडन एग्जीक्यूशन से बाहर आ जाता है, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हो तो क्या होगा, जहाँ जिस किसी लाइन पे एक्सेप्शन आकर होता है उसके बाद वो प्रॉपर मैसेज देगा और फिर टर्मिनेट होगा, ओके। सो दैट इज व्हाई एक्सेप्शन हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एक्सेप्शन कैन बी, अगर आप यूजर से कोई नंबर ले रहे हो और यूजर ने नंबर की जगह पे कुछ स्ट्रिंग डाल दिया, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग आप लेट्स से आपके प्रोग्राम में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यूजर इंटीजर ही डालेगा और आप कन्वर्ट कर रहे हो उसको इंटीजर में, राइट। तो वो स्ट्रिंग तो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एक्सेप्शन, राइट, बिकॉज स्ट्रिंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ वैलिड नंबर. So these are some types of some examples of exception. Now in Python there is a default exception handler. जैसे हमने बहुत बार देखा है कि हमारे प्रोग्राम में कुछ भी एरर आता है तो हमें कंसोल में कुछ मैसेज दिखाता है, राइट। वो जो मैसेज होता है उसमें ट्रेस बैक होता है, उसमें लाइन नंबर होता है कि जहाँ पे एरर आकर हुआ है, राइट। और वहाँ पे टाइप ऑफ एरर भी होता है. दिस mechanism इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर. ऐसे नहीं है कि अगर आपके प्रोग्राम में कुछ एरर है और सडनली आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद हो गया और आपको कुछ मैसेज भी नहीं आ रहा है. दिस इज नॉट, इट इज नॉट लाइक दैट, right? Every language has its own default exception handler, but it will give you message in such a way that the programmer only can understand that messages, राइट. अगर कोई यूजर है जिसको कुछ भी पता नहीं है प्रोग्रामिंग का और आप उसको वो मैसेज दिखाते हो तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट. बट एज अ प्रोग्रामर यू कैन अंडरस्टैंड. सो दिस exception handler is called as default exception handler. So in Python a default exception handler is there. That default exception handler will take over when an exception is raised and it is not caught by any try except blocks, okay. So मतलब अगर आप ट्राई कैच यूज करके कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर रहे हो, in Python there is no catch but there is a except block. इंस्टेड ऑफ कैच देर इज एक्सेप्ट. तो अगर आप ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करके कोई एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर रहे हो और कोई एक्सेप्शन आकर होता है प्रोग्राम में तो वो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर हैंडल करता है, ठीक है. So when an uncaught exception occurs, Python's default exception handler print a traceback to the console which shows the sequence of function calls leading to the exception, and this traceback also include line number, file name where exception occurred. और इसके साथ ही साथ वो किस टाइप का एक्सेप्शन किस टाइप का एरर अकर हुआ है वो भी दिखाता है. And after printing that traceback, program terminates. Okay, let me show you one example of exception, default exception handler. ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है डिवाइड, ओके, जो रिटर्न करता है a स्लैश b और दो पैरामीटर्स a कॉमा b which will return a स्लैश b. और यहाँ से हम वो फंक्शन कॉल कर रहे हैं डिवाइड एंड हमने पैरामीटर्स क्या दिए इसको 10, 0. तो डिनोमिनेटर में हमने 0 दे दिया गलती से या पर्पसफुली, बट दिस विल कॉज एन एरर, राइट. लेकिन यहाँ पे तो हमने कोई भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड नहीं लिखा है, ठीक है. तो क्या होगा, पाइथन का जो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर है वो एक्टिव होगा और वो ऐसा आपको ट्रेस बैक देगा, ठीक है. तो ये ट्रेस बैक में क्या क्या है, मोस्ट रिसेंट कॉल, राइट. तो कौन से फाइल में कौन से लाइन पे वो एरर आकर हुआ है वो है, राइट. तो फाइल example.py लाइन 6, ठीक है. तो वो
ये जो रिजल्ट इक्वल टू डिवाइड 10,0 था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसने इस लाइन के बाद वो गया डिवाइड फंक्शन में, और एग्जैक्ट वो कहाँ पे आकर हुआ है, a/b, मतलब जब वो एक्चुअली डिवीजन कर रहा था 10/0, वहाँ पे एक्सेप्शन अकर हुआ। ठीक है, कौन सा एक्सेप्शन हुआ है वहाँ पे अकर, जीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय जीरो। ओके, सो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेस बैक, which is generated by default exception handler of Python. Got it? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अभी इसके बाद हम देखेंगे कि हाउ वी कैन हैंडल द एक्सेप्शन. ओके, so handling exception in Python is very essential part, and when exception occur it will disturb normal flow, which can cause it to terminate if it is not handled properly. So for that Python provide you a structured way to handle exceptions using, ये कीवर्ड आपको याद रखने हैं. कभी भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनली, these four keywords are used for exception handling. Okay, these four blocks are used for exception handling in Python. ठीक है, जैसे आप जावा में यूज करते थे ट्राई, कैच, फाइनली, राइट, वैसे ही पाइथन में है ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, और उसके साथ एल्स भी है. ठीक है, तो हम देखेंगे अभी कि इनका यूज कैसे होता है. ठीक है, तो फर्स्ट ब्लॉक इज ट्राई ब्लॉक. सो द कोड विच यू फील दैट दिस कोड में रेज सम एक्सेप्शन, इस कोड में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इस कोड से कुछ एरर आ सकता है, तो ऐसा जो कोड होता है जो आपको लगता है पोटेंशियली एरर प्रोड्यूस करेगा, वो कोड आपको डालना है ट्राई ब्लॉक में. ठीक है, so the code that may raise an exception is placed inside the try block, and if an exception occurs within this block, the remaining code in block is skipped. Okay, ये भी आपको याद रखना है कि जिस लाइन पे एक्सेप्शन अकर होता है उसके बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता. as soon as exception is occurred, your control or execution will directly go into except block. ठीक है, और नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम एक्सेप्शन ही अकर होगा, राइट. जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा कि डिवाइड का हमने फंक्शन लिखा है, नॉट नेसेसरी एवरी टाइम हम ये डिवाइड फंक्शन को जीरो ही देंगे. ठीक है, अगर हमने 10,20 दिया तो वहां पे कुछ भी एक्सेप्शन आकर नहीं होगा, राइट. लेकिन जब कोई यूजर जीरो दे रहा है देन एक्सेप्शन विल आकर. सो सेम केस, अगर आपको लग रहा है कि इस कोड में अगर ऐसा अलग कुछ इनपुट आया या फिर यूजर ने कुछ अलग इनपुट दिया तो एरर आ सकता है, तो उसको आपको क्या करना है, ट्राई ब्लॉक में डालना है. ठीक है, और ट्राई ब्लॉक में जब भी आप डालोगे और कोई एक्सेप्शन अकर होगा, तो जिस लाइन पे एक्सेप्शन अकर हुआ है उसके बाद वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूशन विल डायरेक्टली गो इनटू एक्सेप्ट ब्लॉक. ठीक है, सो द एक्सेप्ट ब्लॉक इज यूज्ड टू कैच एंड हैंडल द एक्सेप्शन. अभी अगर एक्सेप्शन अकर हुआ है आपके कोड में, तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्शन अकर होने के बाद आपको यूजर को क्या मैसेज देना है या कुछ अलग प्रोसेस करना है, दैट एवरीथिंग यू हैव टू राइट इन एक्सेप्ट ब्लॉक. ठीक है, सो एक्सेप्ट ब्लॉक इज यूज्ड टू कैच एंड हैंडल द एक्सेप्शन. so what you are supposed to specify in except block, you can specify type of exception you want to catch. If an exception of specified type occurs, the code within except block is executed. ठीक है, मतलब अगर डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आप कैच कर रहे हो, ठीक है, तो इस एग्जांपल में अगर आपको लग रहा है कि डिवाइड फंक्शन में एरर आ सकता है, तो आपने क्या करना है, ये रिटर्न जो स्टेटमेंट है ये ट्राई एक्सेप्ट के अंदर डालना. ठीक है, और जैसे ही कोई यूजर 10,0 देगा और वो एरर अकर हो जाएगा, तो वो आपको एक्सेप्ट में हैंडल करना है वो एरर, और वहां पे आप मैसेज दे सकते हो कि यू कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो. ठीक है, तो जो हैंडलिंग वाला पार्ट है
एक्सेप्शन आकर होने के बाद आपको वो कैसे हैंडल करना है, उसका जो आपको कोड लिखना है वो लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट ब्लॉक में। ओके, नाउ देयर इज अ एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक क्या करता है? एल्स ब्लॉक, सी, whenever you are handling exception, try and accept is mandatory। मतलब अगर आपको लगता है कि एक्सेप्शन हैंडल करना है तो ट्राई के साथ आपको एक्सेप्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये जो एल्स और फाइनली है ये दोनों भी ब्लॉक ऑप्शनल है। ओके, दिया तो भी चलेगा, नहीं भी दिया तो भी चलेगा, ठीक है। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन गिव एल्स एंड फाइनली। नाउ व्हाट इज यूज ऑफ एल्स? द एल्स block is optional and executes if no exception are raised in the try block, ठीक है। तो ट्राई ब्लॉक में अगर आपने कोई ऐसा कोड डाला कि जिसमें एक्सेप्शन अकर हो सकता है, और अगर एक्सेप्शन अकर हुआ तो वो एक्सेप्ट में जाएगा, अगर एक्सेप्शन अकर नहीं हुआ तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो एल्स ब्लॉक इज will be executed if no exceptions are raised in try block, ठीक है। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट कोड दैट शुड रन ओनली इफ ट्राई ब्लॉक सक्सीड, ठीक है। तो एल्स में आपको ऐसा कोड लिखना है जो आपको चाहिए कि ट्राई ब्लॉक के बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर ट्राई में कुछ एरर नहीं आया तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, ट्राई में एरर आया तो ये ट्राई में एरर आया तो जो एग्जीक्यूट होना चाहिए वो आप एक्सेप्ट में लिखोगे। अगर ट्राई में कुछ एक्सेप्शन नहीं आया फिर भी फिर भी आपको कुछ अलग कोड एग्जीक्यूट करना है तो वो कोड आप एक्सेप्ट में लिखोगे, सॉरी एल्स में लिखोगे। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव फाइनली। दिस फाइनली block is also optional, but whatever code you will write inside finally will get executed। एक्सेप्शन अगर होता है तो भी फाइनली एग्जीक्यूट होगा, और एक्सेप्शन अगर नहीं होता है तो भी फाइनली एग्जीक्यूट होगा अगर आपने लिखा है तो, ठीक है। तो यूजुअली फाइनली जो मेथड होता है उसमें हम मेमोरी मैनेजमेंट का काम करते हैं, जैसे किसी ऑब्जेक्ट के हमें रेफरेंसेस डिलीट करने हो, मेमोरी फ्री करनी हो, ऐसे जो काम होते हैं वो हम फाइनली में करते हैं। बिकॉज एरर आपका एक्सेप्शन अगर होता है नहीं होता है, किसी भी केस में फाइनली अगर आपने लिखा है तो उसमें जो कोड लिखा है वो फॉर श्योर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो इट विल गेट एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ an exception was raised or not। So it is often used for cleanup actions like closing files, releasing resources। ऐसे जो cleanup operations होते हैं उनके लिए finally block use होता है, ठीक है। Any doubt in this? नो मैम। फाइनली ब्लॉक का एक बार फिर से बता दीजिए। Okay, ठीक है। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, सेम फंक्शन जो डिवाइड का था उसको हमने, अभी हमें समझ में आया कि उसमें एरर आ सकता है, राइट। तो अगर एरर आ सकता है तो हमें वो एरर ग्रेसफुली हैंडल करना है और यूजर को प्रॉपर मैसेज देना है, इसलिए हमने क्या किया, डिवाइड के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग की, राइट। सो फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग व्हाट वी आर डूइंग, जो रिजल्ट था हमने क्या किया, उसको ट्राई में डाला, जहाँ पे हम डिवीजन कर रहे थे a/b कर रहे थे उसको हमने ट्राई ब्लॉक में डाला। सो ट्राई रिजल्ट इज इक्वल टू a/b। ओके, नाउ अगर मैं दे रही हूँ डिवाइड, अगर मैं कॉल कर रही हूँ उस फंक्शन को बाय गिविंग दिस टू आर्गुमेंट्स 10, 2, ठीक है। तो क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, a will be equal to 10, b will be equal to 2, right। wait for ओके, अगर मैंने फंक्शन कॉल किया यूजिंग 10, 2 ये लाइन, ठीक है, 10, 2 तो a में वैल्यू जाएगी 10 और b में जाएगी 2, ठीक है। नाउ इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग लाइन बाय लाइन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो ये ट्राई ब्लॉक में जाएगा, उसके बाद होगा रिजल्ट इज इक्वल टू a/b,
राइट, a/b मतलब 10/2, राइट. Is there any error in this, any exception in this? No, ma'am. No, राइट. तो ये जो रिजल्ट है इसमें 10/2 मतलब 5 स्टोर होगा, राइट. ओके. नाउ एरर नहीं है तो वो एक्सेप्ट में नहीं जाएगा, राइट. इसमें वो अभी नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा, एल्स में. ठीक है. अगर कोई एक्सेप्शन अकर नहीं होता है ट्राई में तो वो एक्सेप्ट में नहीं जाएगा, लेकिन हमने एल्स ब्लॉक लिखा है तो वो एल्स में जाएगा. ठीक है. तो एल्स में हमने क्या लिखा है, द रिजल्ट इज वैल्यू ऑफ दिस रिजल्ट वेरिएबल. तो यहाँ पे प्रिंट होगा द रिजल्ट इज 5, राइट. ओके. अभी इसके बाद हमने फाइनली भी लिखा है. ओके. तो फाइनली अगर हमने लिखा है तो एरर अगर होता है नहीं होता है तो भी वो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा ही. ठीक है. तो इसका फाइनली में जो हमने मैसेज लिखा है एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, ये भी प्रिंट होगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड. तो अगर मैं ये कॉल करती हूँ डिवाइड 10,2 तो मेरा आउटपुट होगा द रिजल्ट इज 5 एंड एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड. आया समझ में यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. ओके. नाउ जी मैम. नाउ विल सी द सेकंड केस. अभी मैं फंक्शन सेम फंक्शन कॉल कर रही हूँ विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स 10,0. तो a में जाएगा 10, b में जाएगा 0, राइट. नाउ इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग लाइन बाय लाइन. तो फर्स्ट ट्राई में जाएगा रिजल्ट इज इक्वल टू a/b, ये होगा 10/0. इज देयर एनी एक्सेप्शन इन दिस, Yes, ma'am. राइट. Yes, ma'am. हाँ, देयर इज अ एक्सेप्शन. तो एक्सेप्शन है तो Zero किस में division. जाएगा, पहले तो ट्राई एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद हो जाएगा एक्सेप्ट में, राइट. तो एक्सेप्ट में हम कैच कर रहे हैं जीरो डिवीजन एरर. ठीक है. तो सेम एरर हैज अकर्ड हियर, सो इट विल गो इनसाइड प्रिंट एरर कैन नॉट डिवाइड बाय 0. ठीक है. तो ये मैसेज प्रिंट होगा एरर कैन नॉट डिवाइड बाय 0, राइट. तो अभी हमारा ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, कुछ एक्सेप्शन अकर हुआ है, राइट. तो वो एल्स में नहीं जाएगा, एक्सेप्ट का ये जो मैसेज है ये प्रिंट होगा, उसके बाद हो जाएगा फाइनली में. ओके. और फाइनली में ये मैसेज प्रिंट करेगा एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड. गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर एक्सेप्शन अकर होता है तो फ्लो कैसे रहेगा, पहले तो ट्राई, ट्राई में एक्सेप्शन अकर हुआ उसके बाद एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के बाद डायरेक्टली फाइनली. ठीक है. और अगर एक्सेप्शन अकर नहीं होता है तो ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स, और एल्स के बाद फाइनली. ठीक है. तो फाइनली तो एग्जीक्यूट होना ही होना है. अगर आपने फाइनली लिखा है तो एरर अगर हो, एरर आपके सॉरी एक्सेप्शन हो या नहीं हो फाइनली तो एग्जीक्यूट होगा ही, राइट. तो इन फर्स्ट केस it will print result and finally block message, and in second case it will catch zero division error, print error message and finally block message. ठीक है. तो फाइनली अगर आपने लिखा है तो उसमें जो भी कोड आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है. इसीलिए फाइनली में हम लिखते हैं क्लीन अप कोड. क्लीन अप कोड मीन्स रिलीजिंग द रिसोर्सेज, जैसे हमने देखा डिलीटिंग द ऑब्जेक्ट. ठीक है. या फिर गार्बेज कलेक्टर को आपको कॉल करना है, या फिर कुछ फाइल आपने ओपन की है तो फाइल क्लोजिंग
क्लोजिंग का ऑपरेशन करना है, ऐसे जो ऑपरेशन है वो हम फाइनली में करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई फाइल हमने ओपन किया है ट्राई में, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो एक्सेप्ट में जाएगा, राइट। अगर फाइल एग्जिस्ट है तो वो रीड करेगा, लेट्स से। ठीक है, लेकिन फाइनली में हमें क्या करना है, वो फाइल को क्लोज करना है। ठीक है, तो गलती से अगर रीड करते हुए कुछ एरर आया, उसके बाद वो फाइल प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ, तो अगर फाइनली में हम वो फाइल क्लोजिंग का कोड लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट होगा और फाइल क्लोज कर देगा। दिस इज द पर्पस कि ऐसा ब्लॉक हमें क्यों चाहिए कि जो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो दिस इज द रीजन कि ऐसा फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है कि जो एग्जीक्यूट होता ही है, और जिसमें हम रिसोर्सेज रिलीज करने के लिए, फाइल क्लोज करने के लिए, डेटाबेस कनेक्शन कुछ किया हो तो वो क्लोज करने के लिए, ऐसे सारे क्लीन अप का जो कोड होता है वो फाइनली में लिखते हैं। गॉट इट? यस मैम। ओके, मैम, श्योर प्लीज। मैम जो एरर, जीरो डिवीजन एरर, वो प्री डिफाइन होता है या फिर हम खुद डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कुछ भी एरर? नहीं, हम डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो जीरो डिवीजन एरर है ये प्री डिफाइंड एरर है, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है बेसिकली। नेक्स्ट स्लाइड में हम वही देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। ओके, ठीक है मैम। तो पाइथन में बिल्ट इन एक्सेप्शंस है। देयर आर मेनी एक्सेप्शंस, हियर आई हैव लिस्टेड फ्यू ऑफ देम जो मोस्टली यूज होते हैं। ठीक है, वैसे एक्सेप्शंस तो बहुत सारे हैं पाइथन में। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सेप्शन है अरिथमेटिक एरर। सो उसका नाम जो है अरिथमेटिक, सो अरिथमेटिक ऑपरेशन रिलेटेड जो भी एरर्स है, जो भी एक्सेप्शंस है, उसके लिए ये बेस क्लास है अरिथमेटिक एरर। ठीक है, तो जो अभी हमने देखा जीरो डिवीजन एरर, ये उसका सब क्लास है। ठीक है, raised when dividing by zero. Then there is a overflow error which is raised when result of arithmetic operation is too large to be expressed. ठीक है, अगर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन आप ऐसा कर रहे हो कि जिसका रिजल्ट बहुत बड़ा है, वो अगर मेमोरी से बाहर जा रहा है उस पर्टिकुलर वेरिएबल के, तो इट विल थ्रो ओवरफ्लो एरर। या फिर देयर इज वन मोर अरिथमेटिक एरर दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट एरर, it is raised when floating point operation fails. Okay, so these are some of the types of arithmetic errors. Then next we have lookup error. So this lookup error is base class for errors raised when lookup operation fails. Now what is lookup operation? जैसे आप array read कर रहे हो, ठीक है, तो हमारे पास लेट से कोई array है जिसमें सिर्फ, या फिर लिस्ट है जिसमें है 10 एलिमेंट्स। ओके, 1 2 3 ऐसे 10 है, और मैं कर रही हूँ a ऑफ 11। तो ये क्या हुआ? इंडेक्स एरर, बिकॉज नो इंडेक्स इज प्रेजेंट विद 11, राइट। या फिर मैं कोई डिक्शनरी एक्सेस कर रही हूँ और जिसमें आई एम एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी यूजिंग की, और जो की मैं जिस की से मैं एक्सेस कर रही हूँ वो की ही उस डिक्शनरी में नहीं है, देन इट विल गिव यू की एरर। ठीक है, so such operations are called as lookup operation where we are trying to access elements in list, dictionary, tuple, set, all these data types. ओके, और अगर ये डेटा टाइप में ट्रेवर्स करते हुए कुछ एरर आता है, इट इज कॉल्ड एज लुकअप एरर। एंड इनसाइड लुकअप एरर वी हैव अगेन सब क्लासेस लाइक इंडेक्स एरर, की एरर। सो these errors can be raised when lookup operation fails। ठीक है, तो अगर एरे रिलेटेड, सॉरी, लिस्ट, डिक्शनरी, ऐसे डेटा टाइप रिलेटेड अगर आप कुछ ऑपरेशन कर रहे हो, तो it is suggested that you should catch such exception like index errors, key errors, like that. Okay, then next we have value error. This is again a class which is exception class raised when built-in operation or function receives an argument that has the right type but inappropriate value। ठीक है, तो वैल्यू एरर कब आता है कि जैसे आप कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो और फंक्शन को आपको स्ट्रिंग देना, नंबर देना था, तो उसकी जगह पे आपने स्ट्रिंग दे दिया, राइट। तो ये हो गया वैल्यू एरर। तो अगर ऐसे कोई एरर्स आपको लगता है कि आपके प्रोग्राम में आ सकते हैं,
तो आपको एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट वैल्यू एरर, ठीक है। Then there is a type error raised when operation or function is applied to an object of inappropriate type. अगर टाइप में डिफरेंसेस हैं तो वहाँ पे आता है टाइप एरर। देन देयर इज वन मोर टाइप ऑफ एक्सेप्शन दैट इज फाइल नॉट फाउंड। तो इसके तो नाम से समझ में आता है कि अगर आप कोई ऐसी फाइल ओपन या रीड कर रहे हो कि जो एग्जिस्ट ही नहीं है, एट दैट टाइम फाइल नॉट फाउंड एरर विल बी थ्रोन, ठीक है। तो ये है कुछ एक्सेप्शन, बिल्ट इन एक्सेप्शन जो आप हैंडल कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई कस्टम क्लास लिख रहे हो जिसमें आपको अलग ही कुछ एक्सेप्शन हैंडल करना है, राइट, जैसे कुछ न्यूमेरिकल ऑपरेशन कर रहे हो जहाँ पे निगेटिव नंबर आपको नहीं चाहिए, तो आप कोई निगेटिव नंबर एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हो उसका, और जैसे ही कुछ निगेटिव नंबर आता है तो आप वो एक्सेप्शन रेज कर सकते हो, ठीक है। तो इन नेक्स्ट वी हैव रेजिंग द एक्सेप्शन। तो आप बिल्ट इन एक्सेप्शन भी रेज कर सकते हो या फिर आप खुद के कस्टम एक्सेप्शंस भी रेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो टाइप ऑफ एक्सेप्शन है, ये एक तो आप ट्राई एक्सेप्ट यूज करके हैंडल कर सकते हो, या अनदर वे इज रेजिंग द एक्सेप्शन, ठीक है। तो रेज कैसे कर सकते, यस। Ma'am, if there we can place value of pi 20 divided by 7, then ma'am, this will be which type of error? Is this overflow error or floating point error? क्या क्या? Ma'am, if I place value of 22 divided by 7, and I हम्म, know the value of pi is goes through 20, no, through 3.14 and so on through infinite time. So, ma'am, this type of error is which type of error of arithmetical error, overflow or floating point error? इट विल बी ओवरफ्लो एरर। जब फ्लोटिंग पॉइंट पे आप कुछ ऑपरेशन करते हो और वो ऑपरेशन फेल होता है तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग पॉइंट एरर। Okay, ma'am. और अगर आपने ऐसा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया जो जैसे इंटीजर का मेमोरी लेट्स से है कुछ बाइट्स, और वो उस बाइट्स में आपका नंबर फिट नहीं हो रहा है, कुछ मल्टीप्लिकेशन कुछ एक्सपोनेंशियल आपने ऑपरेशन किया, जैसे 2 200 कर दिया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो इतना बड़ा होगा कि इंटीजर में फिट ही नहीं होगा, राइट। Yes, ma'am. हाँ, तो इस टाइप के लिए आएगा ओवरफ्लो एरर। अगर आप कोई फ्लोटिंग पॉइंट का ऑपरेशन कर रहे हो और उसमें कुछ ऑपरेशन फेल हो गया, मतलब आपने करेक्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं दिया या फिर फ्लोटिंग पॉइंट की जगह पे दूसरा कुछ नंबर दे दिया, तो दैट टाइम में ये आएगा फ्लोटिंग पॉइंट एरर, ओके। ये आपको समझ में कब आएगा, जब आप एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट करके देखोगे कि कौन सा एरर कब आता है, ठीक है। तो जो आपके माइंड में है अभी, मैंने तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप ये ट्राई करके देखो, जो भी आप बोल रहे हो ना वो आप ट्राई करके देखो, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा, ठीक है। जी मैम, जी मैम। ओके, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि ट्राई एक्सेप्ट से एक्सेप्शन कैसे हैंडल कर सकते हैं। नाउ हियर यू कैन ट्राई और एक्सेप्ट से जब भी आप एक्सेप्शन हैंडल करते हो तो वो जो एक्सेप्शन होता है वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम में रेज हुआ है, दैट यू आर हैंडलिंग, ठीक है। लेकिन एक्सप्लिसिटली किसी पॉइंट पे आपको एक्सेप्शन रेज करना है तो आप रेज कीवर्ड यूज करके वो एक्सेप्शन रेज कर सकते हो। जैसे आप इस एग्जांपल में देखो, यू कैन रेज एक्सेप्शन इन योर ओन कोड यूजिंग रेज स्टेटमेंट, ठीक है। और वो कैसे करना है, जैसे हम एक हमारे पास एक फंक्शन है चेक पॉजिटिव, ओके, और उसमें अगर निगेटिव नंबर आया तो आपको कुछ एक्सेप्शन रेज करना है, वैल्यू एरर का एक्सेप्शन रेज करना है, ठीक है। तो अगर नंबर लेस देन 0 है तो आप लिख सकते हो रेज वैल्यू एरर, लेकिन अगर नॉर्मली आप इस प्रोग्राम में देखोगे तो वैसे तो कुछ एरर नहीं है, राइट।
लेकिन एक्सप्लिसिटली आपको यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन रेज करना है। आ रहा है पॉइंट समझ में कि जब हम ट्राई एक्सेप्ट करते हैं तो ट्राई एक्सेप्ट कब करते हैं, जहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ एक्सेप्शन आ रहा है, जैसे डिवाइड बाय जीरो। तो डिवाइड बाय जीरो ऑपरेशन अलाउड ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली रेज हुआ, तो उसको हम हैंडल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे रेज एक्सेप्शन कर रहे हैं, मतलब हमें ऐसे चाहिए कि अगर किसी ने निगेटिव नंबर डाला तो मुझे एक्सप्लिसिटली वैल्यू एरर का एक्सेप्शन रेज करना है। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी, इफ नंबर इज लेस देन जीरो रेज वैल्यू एरर। ठीक है, और जहां से हम कॉल करेंगे वहां पे हम ट्राई और एक्सेप्ट लिखेंगे। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन में विथ निगेटिव नंबर कॉल करती हूँ तो ये क्या करेगा, रेज करेगा वैल्यू एरर, और जैसे ही ये वैल्यू एरर रेज हो जाएगी तो एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा और जो भी मैसेज मैंने दिया है वो प्रिंट हो जाएगा। ये आया समझ में? इसमें किसी को डाउट है कुछ? No. ओके, तो ये जो फंक्शन है ये एक्सेप्शन रेज क्यों कर रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा है कि कुछ ऐसी कंडीशन है कि नंबर लेस देन जीरो है, तो हमें ये वैल्यू एरर का एक्सेप्शन रेज करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रेज लिखा है, इसकी वजह से एक्सेप्शन रेज होगा और वो एक्सेप्ट में जाएगा। राइट, अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो एक्सेप्शन रेज नहीं होगा, लेकिन नंबर लेस देन जीरो है तो हमने लिखा है रेज एक्सेप्शन, इसीलिए एक्सेप्शन रेज हो रहा है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट विल गो इनटू एक्सेप्ट ब्लॉक एंड प्रिंट द मैसेज। अदरवाइज अगर आप पॉजिटिव नंबर डालते हो तो वो नंबर रिटर्न होगा और वो एक्सेप्ट ब्लॉक में नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो सिर्फ नंबर रिटर्न करेगा। गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so with this we will stop today. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.